Hi, I'm Amita Balachandra. This is the 6:30 p.m. show that I do every single day. We pick up one important topic and break it down for you. And as I always say, this session will be conversational, it will be interactive. So make sure that you ask your questions in the chat window that is open right now. Today, we pick up the case of freelance journalist Prashant Kanodia. Now, for those of you who don't know about this case, journalist Prashant Kanodia has been in jail for more than a month and a half over a tweet. Now, on the 18th of August is when he was arrested by the UP police for allegedly posting a morphed photograph about a Ram temple in Ayodhya. Now, this is what's happened since then. Kanodia has been denied bail by the Sessions Court. Post that, the matter came up in Allahabad High Court, and the Allahabad High Court went on to accept UP government's request for 4 weeks' time to respond to this bail plea. That was in September, the last week of September. It's been more than a month and a half that Prashant Kanodia has now been in jail. Let me give you more perspective about the case and tell you where it actually began. The case goes back to a Facebook post by Sushil Tiwari, a Hindutva activist, who had put up a post which the police says was circulated with a mocked image and changed wordings. And the police says that this was tweeted by Kanoja and that tweet, according to the police, has invoked 9 sections of the Indian Penal Code against him. Ever since then, this is what has happened. His wife has started a campaign, considering it is COVID and there's no a way to go out to the streets to protest. The family has started a campaign, hashtag release Prashant Kanoja on Twitter. Not just that, over 980 activists and scholars have now said that this is quote unquote political vendetta, and they've called for release of Prashant Kanodia. We're going to be attempting today to find out what the case is about, what the family's demands are, and how it's progressed in the last 1 month and a half. I have with me his wife, Jagisha Arora, Prashant Kanodia's wife, joining me right now. Jagisha, thank you so much for making time today. If you can first of all take us through what happened on 18th of August, क्या हुआ 18th August को, और what is the tweet all about? सबसे पहले सबको थैंक यू और सबको हेलो। सो मैं इससे स्टार्ट करूंगी कि 18 अगस्त को कुछ 5-6 पुलिस वाले हमारे घर पे आते हैं, मुनीर का, जहाँ पे हम रह रहे हैं इस वक्त। तो वो मैं दरवाजा खोलती तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप कौन हैं, तो बोलते कि प्रशांत हमको जानते हैं, आप उन्हें बुलाइए। तो फिर मैं बोलती हूँ कि आप कौन हैं, तो वो कुछ बोलते नहीं है। तो फिर मैं प्रशांत को उठाती हूँ। उस वक्त वो सो रहे होते हैं कि कुछ 12 बजे का टाइम होता है, दोपहर के 12 बजे का टाइम। तो फिर प्रशांत उठते हैं, तो फिर मैं फिर से पुलिस से पूछती हूँ कि क्या 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 मामला है। तो बोले हम आपके हस्बैंड को अरेस्ट करने आए हैं फॉर अ ट्वीट। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि किस तरीके का ट्वीट था, तो वो मना कर देते हैं कि अभी हम नहीं बताएंगे। फिर वो बोलते हैं कि हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन, जो हमारे नियर बाय पड़ता है, हम वहां से ट्रांजिट रिमांड लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे यूपी, लेके जाएंगे हमको। तो उसके बाद हम कुछ 15-20 मिनट बाद हम वसंत विहार पुलिस स्टेशन जाते हैं। फिर वहां पे हम पूछते हैं कि यहाँ पे कोई प्रशांत कनौजिया को लेकर आया है, तो वो हमें सीधा से मना कर देते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आया। तो हमें लगता है कि पुलिस वाले ने हमसे झूठ बोला या हमको थोड़ा गुमराह करने के लिए कि आप 15-20, और हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी क्या हम आपके साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया। तो उसके बाद हमने कोशिश करी कि फिर उसके बाद हमें एक वो मिलती है, हमें एफआईआर की कॉपी मिलती है जिसमें सेक्शंस लगे होते हैं, और किसी सुशील तिवारी की पोस्ट का जिक्र होता है। तो सुशील तिवारी की जो मॉफ्ड इमेज जो बहुत दिनों से चल रही थी, वो इस तरीके से थी कि जो SC ST OBC का मंदिर में प्रवेश निषेध रहेगा, और वो बहुत दिनों से चल रही थी। प्रशांत के पास 16 अगस्त को वो मॉफ्ड इमेज आती है, तो वो शेयर करते हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि वो गलत है तो वो डिलीट कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और जो सुशील तिवारी, जो हिंदू आर्मी जैसा कुछ पेज चलाते हैं, उनका यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वो लगातार इस्लामोफोबिक ट्वीट्स करते हैं। मतलब
हेट स्पीच जैसे ट्वीट्स करते हैं, और उनका ओरिजिनल ट्वीट भी था, वो इस तरीके से था कि यूपीएससी से इस्लामिक स्टडीज को हटा देना चाहिए। तो जगीशा, एक बात हमें समझा दीजिए, एक बात हमें समझा दीजिए। I'll come to Sushil Tiwari's bit as well, but if you can tell us, you're essentially saying that Prashant did not morph the picture, he only tweeted about it and deleted it? जी जी जी, उन्होंने मॉफ नहीं किया है, प्रशांत ने मॉफ नहीं किया है, और जो उनपे सेक्शंस लगाए वो इस तरीके से लगाए कि उन्होंने मॉफ किया है इमेज, और फ्रॉजरी का या जो भी इस तरीके के सेक्शंस लगाए गए, उन्होंने खुद से मॉफ नहीं करी है। और ओरिजिनल कौन है जिसने मॉफ इमेज बनाई है, उसका भी पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। और किसी सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला ने सुशील तिवारी के बिहाफ पे डेफेमेशन का केस लगाया, सुशील तिवारी ने भी नहीं लगाया है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का नेक्सस है, कि मतलब कोई थर्ड पर्सन, कोई सब इंस्पेक्टर जाके एफआईआर करवा देता है। तो जब 18 अगस्त को अरेस्ट हुआ, आपको बताया गया कि क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कौन सी ट्वीट के को लेकर अरेस्ट किया जा रहा है? Did anything, I mean, did the police tell you anything at all, what the tweet was about? Because the FIR claims that Kanodia had written that as per Tiwari's orders. You are denying those allegations. बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने सीधा ये बोला कि हमें हमारे ऊपर से ऑर्डर है, हम आपको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। तो हमने पूछा भी क्यों आप अरेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक बात का जिक्र किया कि कोई ट्वीट किया होगा तो हम इसलिए हम अरेस्ट करने आए हैं। बाकी उन्होंने हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं दी। हमें जब एफआईआर की कॉपी मिली तो हमें देखने को मिला कि अच्छा ये सेक्शंस लगाए गए हैं। और सुशील तिवारी जो अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरीके के हेट स्पीच, इस्लामोफोबिक ट्वीट्स कर रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो ओरिजिनल जिसने मॉफ की थी इमेज सुशील तिवारी की, पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। As far as Sushil Tiwari's post is concerned, people would argue that his post is also objectionable. But has there been any action against him? नहीं, अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यही एक अपने आप में मैं इतने दिनों से जो मैं सवाल कर रही हूँ, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जिस तरीके से भी, कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जिसने जो ओरिजिनल मॉफ की थी इमेज, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ प्रशांत कनौजिया पे गिरफ्तारी हुई है, और उनकी गिरफ्तारी को भी सेशन कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, और हाई कोर्ट भी 4 हफ्ते के बाद का टाइम दे रहा है। वो अपने आप में बताता है कि प्रशांत कनौजिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो ही इज बीन वेरी vocal about several issues, like if Dalit atrocities happen, he spoke about it. If lynching of Muslims happened, he spoke about it. If there is Kashmir issue, he spoke about it. So he has been always vocal about these issues. That's why he's been targeted. Aisha, I also want to ask you this. At least 980 activists have now said that this arrest is politically motivated. आपको क्या लगता है, कि आपको लगता है कि ये politically motivated है? बिल्कुल पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत का अरेस्ट हुआ है, सिर्फ प्रशांत का अरेस्ट हुआ है, और मैं देखती हूँ रोज न्यूज चैनल से लेकर अखबार तक किस तरीके से लोग फेक न्यूज फैलाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो आराम से वो कोई माफी नहीं देते हैं। जैसे तबलीगी जमात के जब उसकी पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब किसी मीडिया चैनल ने कोई माफी नहीं दी। तो मुझे ये पूछना है कि आप सिर्फ प्रशांत कनौजिया को ही टारगेट क्यों कर रहे हो, या आप डिसेंट की आवाज को क्यों आप सप्रेस कर रहे हो? माई क्वेश्चन इज टू ऑल द पीपल की जो मुझे सुन सकते हैं या सुन रहे हैं, मेरा उनसे यही सवाल है कि आप उन्होंने शेयर किया, मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे उन्हें पता चला कि वो गलत है, हम मुझसे भी ये गलती हो सकती है, एक ह्यूमन एरर है कि आपके पास कोई न्यूज आती है तो आप शेयर कर देते हैं, फैक्ट चेक आप नहीं कर पाते कई बार। तो आप जैसे आपको समझ में आता है कि वो गलत थी खबर, तो आप डिलीट कर देते हैं। लेकिन उस डिलीट की हुई खबर को पे इतने सारे सेक्शंस लगा दिए जाना और कहा दिया जाना कि आपने कुछ गलत कर दिया, आपने हेट स्पीच फैलाई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो आप ये बोल रहे कि प्रशांत कनौजिया जी ने ये गलती की कि ये ट्वीट किया उन्होंने, लेकिन वो गलती को मान के उन्होंने डिलीट कर दिया, तो मतलब माफ करना चाहिए।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गलती तो किसी एक ह्यूमन एरर है कि हम जिस फेक न्यूज के दौर में हम जी रहे हैं, हमारे पास कई ऐसी खबरें आती है। न्यूज चैनल्स को देखिए, जिस तरीके से फेक न्यूज वो फैलाते हैं, चाहे आप कोई भी केस उठा के देख लीजिए, जिस तरीके से हो रहा है अभी भी फिलहाल जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रशांत कनौजिया पे क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या अगर आपसे गलती हो गई तो इतना बड़ा आपने गलती कर दी, जबकि सुशील तिवारी अभी भी वीडियोस बना रहे हैं, अभी भी वो हेट स्पीच फैला रहे हैं, इस्लामोफोबिक ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उन पे कुछ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? और आई ऑल्सो वांट योर कमेंट ऑन द प्रोग्रेस इन दिस केस। आप बता रहे थे कि पहले सेशंस को डिनाइड बेल, देन Allahabad High Court has accepted UP government's stand, saying that they need 4 weeks time to look at the bail plea. What would you say about the progress of the case? अभी जो हमारी नेक्स्ट डेट जो हमें मिलेगी वो 19 अक्टूबर को होगी, और उसके बारे में पता चल पाएगा कि क्या अगर बेल रिजेक्ट होती है दोबारा से, या हम सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, या किस तरीके से केस आगे बढ़ता है। लेकिन तब तक मैं प्रशांत के लिए आवाज उठाती रहूंगी, और तब तक मैं अपना सोशल मीडिया पे लिखती रहूंगी, बोलती रहूंगी, क्योंकि अभी कोविड की वजह से हम प्रोटेस्ट कोई ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया के थ्रू ही एक मीडियम है जिससे मैं अपने पार्टनर के लिए आवाज उठा रही हूँ। Okay, so you're saying that you'll continue to bring this to the notice of the authorities. You will continue to protest, at least online, considering it's COVID, and that you could approach the Supreme Court, because that's something that you did last year as well. अगर हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट हम मूव करेंगे। और मैं सबसे भी अपील करना चाहती हूँ कि पुलिस को भी ये बात बोलना चाहती हूँ, या जो भी अथॉरिटीज है, अगर प्रशांत ने वो मॉक इमेज को शेयर किया है तो उसके बाद उसे डिलीट भी किया है, सिर्फ स्क्रीनशॉट के आधार पर उन पे इतनी सारी धाराएं लगा देना, और जो ओरिजिनल जो ट्वीट है वो भी इस्लामोफोबिक था, उस पर आप पुलिस पहले कार्रवाई करें। सुशील तिवारी की जो अन्य पोस्ट है उस पर कार्रवाई करें। तो इसीलिए हम बोलते रहेंगे प्रशांत के लिए, मैं बोलती रहूंगी, लिखती रहूंगी, और इसी तरीके से बात करती रहूंगी। All right, so Jagisha Arora, Prashant Kanoja's wife there, making it very clear that this perhaps was a mistake, but this does not warrant jail time of more than a month and a half, because remember, Prashant Kanoja has been in jail for more than a month and a half, and the next hearing is on the 19th of October, but there could be a possibility where she could approach the Supreme Court as well. In the meantime, she will continue to raise her voice online, is what she says. Jagisha, thank you so much for making time and talking to us. And you are watching. Thank you for watching. Thank you.